Good morning, everyone. My name is Suraj Yadav. I am a account teacher. Today, I will start a SAYER chapters of class 12th. Uh, what is SAYER firstly? SAYER is a capital for a company. SAYER. SAYER. SAYER is a capital for a company. Capital means, you know, कॉमर्स में बताया जाता है कि कैपिटल इज अ without capital you cannot start any type of business. Capital is the backbone for every business, whether business is small or large. So according to me, every business need a firstly capital. So capital is the how can you collect the capital? Firm can collect the capital? First is share. Share is a capital for a company. Share is a capital for a company. Share is a capital for a company. He is divided into a small part. He is divided into a small part. He is divided. Share, once again, share is a capital for a company. He is divided into a small part. I will discuss about what is the small part. Firstly, I will say that what is share? Share is a capital for a company. How many types of share? There are two types of share: equity share and preference share. Equity share and preference share. Types of share. Types of share. First, equity share. Second, preference shares. Equity share. What is equity share? Equity share is the owner of company. Those person they purchase the equity share in a company, they are called owner of the company. Those person they purchase preference share of a company, they are called creditor of a company. There are two types of equity share and preference share. If you are purchasing equity share, you will call owner of the company. If you are purchasing preference share, you will call the creditor of a company. And टाइप्स लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं यू नो दैट रिडीमेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर we will discuss what is the redeemable preference shares and irredeemable preference share. Irredeemable preference share. Irredeemable preference shares. redeemable preference share redeemable preference share वह preference share होता है जो कंपनी आफ्टर द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी. रिडीमेबल मतलब कि जिसका पेमेंट कंपनी बिफोर वाइंडिंग ऑफ कंपनी समापन से पहले जिसका पेमेंट कर देते हैं उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं. और जिस शेयर का पेमेंट कंपनी रिडीमेबल आफ्टर द वाइंडिंग ऑफ समापन के बाद करते हैं उसको रिडीमेबल बोलते हैं. कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. नॉन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टेबल जो प्रेफरेंस शेयर दे कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, मतलब जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्टेबल बोलते हैं, जिसको नहीं कर सकते उसको नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं. पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? उन प्रेफर जो कंपनी के मैनेजमेंट में या किसी भी डिसीजन टेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग एंड ऑल्सो दे कैन
पार्टिसिपेटिंग मीन्स जो सरप्लस में हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी को अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती है तो वो पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी जो प्रेफरेंस शेयर अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं, जो नहीं कर सकते उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ शेयर टुडे। आई विल शॉर्टली डिस्कस अबाउट द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, बट I want to say that share is a capital for a company and he is divided into small part. What is the small part? Suppose that one example, example, a company issue 10,000 share rupees 10 each into the public. पब्लिक में कंपनी एक 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर उसको लॉन्च करती है। रुपीज फ्री ऑन एप्लीकेशन, कंपनी इशू 10,000 से रुपीज 10 each into the public, rupees free on application, rupees 2 on allotment, rupees 2 on first call, and last is rupees 3 on final call. That is the process of share. All amount duly received by the company that is the process of questions, numerical questions. Share is a capital for a company. He is divided into small part. I am talking about a small part. Suppose that one share value is 10. One share value of share is रुपीज 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है जिसको 4 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट एप्लीकेशन पे 3 रुपया, 2 रुपए अलॉटमेंट में, सॉरी गाइस, अलॉटमेंट में और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे। 4 पार्ट में उसको बांटा गया है। उसी को बोलते हैं स्मॉल पार्ट। बिकॉज आपने टोटल शेयर, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है। कितना शेयर? 10,000। उसको 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर पे पैसा टोटल कितना देना होगा? 10,000 पे 1,00,000 रुपए उसको देना होगा। कितना देना होगा? 1,00,000। तो टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा कंपनी को? अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है, मान लीजिए मैंने ही शेयर खरीदा 10,000 और मुझे 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना देना होगा? हाउ मेनी अमाउंट आई विल पे टू द कंपनी? 1,00,000। 10,000 शेयर, वन शेयर वैल्यू इज 10 रुपीज ईच। एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए का एक शेयर है तो कितना देना होगा? 1,00,000 रुपए।
अब 1 लाख रुपए हमारे पास इतना रहता नहीं है, तो कंपनी हमको एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम देती है, उसको डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे पहले उसने एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगा, 3 रुपए का एप्लीकेशन है, तो कंपनी हमसे 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रही है, तो 10,000 गुणे 3, अगर हम करेंगे 10,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपया अगर देंगे एप्लीकेशन पे, तो कितना देना पड़ेगा एप्लीकेशन पे? 30,000। फिर अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 10,000 गुणे 2, कितना देना होगा? 20,000। फिर कंपनी 10,000 गुणे 3, 10,000 गुणे 2, कंपनी को 20,000 रुपये फर्स्ट कॉल पे देना होगा। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। ये हो गया अलॉटमेंट। ये हो गया फर्स्ट कॉल। 10,000 गुणे एट लास्ट, कंपनी 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये किस पे देगी? फाइनल कॉल पे। आप सबको ऐड करके देखिए, कंपनी को इतना पे करना पड़ेगा हमको। मान लीजिए मैंने अगर शेयर खरीदा, कोई पर्सन ने शेयर खरीदा, कंपनी को हम लोग कितना देंगे? टोटल हमको देना है 1 लाख। आप इसको ऐड करिए, देखिए 1 लाख आ रहा है। 1 लाख रुपए को कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में मांगा। एक एक बार में कोई इकट्ठा पैसा दे नहीं सकता, तो कंपनी ने उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। कंपनी उसके शेयर को डिवाइड कर दी स्मॉल पार्ट में, 4 पार्ट में उसने डिवाइड किया। 30,000 रुपये आप एप्लीकेशन पे देंगे, 2 रुपया के हिसाब से 10,000 गुणे 2 के हिसाब से 20,000 आप अलॉटमेंट पे करेंगे, 20,000 फर्स्ट कॉल पे करेंगे, 3,000 30,000 फाइनल कॉल पे करेंगे। बट लोगों का प्रश्न होता है, सर ये होता क्या एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी में शेयर खरीदना आते हो, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। उस टाइम कंपनी आपसे पैसा मांगती है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस। जैसे आप स्कूल्स में किसी में एडमिशन्स लिए, तो आप सबसे पहले स्कूल में जाओगे तो एक फॉर्म मिलेगा आपको भरने के लिए, आवेदन करने के लिए। तो कंपनी वहां पे आपसे कोई वहां पे स्कूल्स वाले कुछ पैसा आपसे वहां लेते हैं आवेदन का, वहां आप जमा करोगे कुछ पैसा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जब आपका एडमिशन का प्रोसेस आएगा, तो कम आपको स्कूल वाले पहली बार जब आपको सीट अलॉट करेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा, तो आपसे वहां 2 रुपए मांगेंगे, 2 रुपए के हिसाब से पैसा। फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो फिर जब आपसे कम कोई फर्स्ट टाइम पैसा मांगता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद जब आप एडमिशन आफ्टर द एडमिशन इफ यू विल पे द अमाउंट, दे आर कॉल फर्स्ट कॉल। उसके बाद अगर कंपनी लास्ट में पैसा मांगती है, उसको फाइनल कॉल बोलते हैं, इसको सेकेंड एंड फाइनल बोल देंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करती है। ये प्रोसेस है शेयर का, क्योंकि शेयर में इसी तरीके से कंपनी पैसा कलेक्ट करती है पब्लिक से। एक बार में वो पेमेंट नहीं ले सकती इकट्ठा। अगर कोई व्यक्ति हाई फैसिलिटी ले सकती है, एक बार में वो एप्लीकेशन पे पूरा पैसा मांग सकती है। बट शेयर क्या होता है? शेयर इज अ कैपिटल फॉर अ कंपनी। ऑलरेडी आई हैव सेड दैट बिफोर द स्टार्ट द टॉपिक ऑफ शेयर। शेयर इज अ कैपिटल फॉर अ कंपनी, ही इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। ये छोटे छोटे पार्ट में बना है, तो यही है छोटा छोटा पार्ट, 4 पार्ट। कंपनी में भी हो सकता है थर्ड कॉल भी मांग सकती है, क्योंकि वो भी लास्ट कॉल जिसके साथ मांगेंगे उसके साथ फाइनल वर्ड जुड़ जाएगा। जैसे फाइनल कॉल है, जिसके साथ आप सेकंड जोड़ सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। दैट इज द प्रोसेस ऑफ शेयर। शेयर इज अ कैपिटल फॉर अ कंपनी, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। अब कैपिटल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपनी में। एथोराइज कैपिटल्स होते हैं, इशूड कैपिटल्स होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल्स होते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल्स होते हैं, रिजर्व कैपिटल्स होते हैं। ये सब तीन टाइप्स होते हैं कंपनी में कैपिटल्स के। उसको हम लोग डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन मैं पहले शेयर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि शेयर्स क्या होता है। शेयर को हिंदी में हम लोग अंश बोलते हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि शेयर होता क्या है, तो हिंदी में उसको अंश बोलते हैं। अंश शेयर कंपनी के लिए, शेयर क्या काम करता है? कैपिटल का कलेक्शन करवाता है। कंपनी को पास कैपिटल चाहिए, तो वो शेयर इशू करती है। और कौन कर सकता है? ये 2 तरीके की कंपनी होती है, आप लोग अगर जानते होंगे तो ये भी बता सकते हैं बच्चे, कि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसको बोलते हैं जिसके नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड लगा है। प्राइवेट कंपनी, सॉरी, जिसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जुड़ा है, उसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं।
जिसके नाम के लास्ट में लिमिटेड सिर्फ जुड़ा है, प्राइवेट बट नहीं जुड़ा, दे आर कॉल पब्लिक कंपनी। इसका डिफिनेशन क्या कर दे सकते हैं? जिस कंपनी में मेंबर, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 7 मेंबर, सॉरी 7 नहीं, मैक्सिमम 200 मेंबर, इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। और एक होता है पब्लिक कंपनी, जिसमें मिनिमम, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है, जितना भी है, क्योंकि पब्लिक है कंपनी तो कोई कितने भी आ सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं। पब्लिक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो मार्केट में शेयर प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे अगर आपको किसी चीज का प्रचार करना है तो आप एक एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे। एडवर्टीजमेंट मतलब आप उसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा। अगर आप अपनी कंपनी का प्रचार वगैरह करेंगे तो जिसको देख के लोग मोटिवेट होकर आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ पब्लिक कंपनी पब्लिक में इशू कर सकती है अपना प्रोस्पेक्टस, और पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकती है शेयर के बेस पे। प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी को अगर पैसा चाहिए, कंपनी वो भी है, अगर उसको पैसा चाहिए तो वो अपने रिलेटिव से पैसा ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, बट पब्लिक में शेयर वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। अगर उसको इशू करना है तो वो अपने रिलेटिव, अपने क्लोज फ्रेंड्स को कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी किसी को भी कर सकती है, क्योंकि ये पब्लिक नाम है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने रिलेटिव और फ्रेंड से पैसा जनरेट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकती है प्रोस्पेक्टस के बेस पे। प्रोस्पेक्टस एक होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए ये संकल्प ट्यूटोरियल्स है, अब संकल्प ट्यूटोरियल्स में पूरा हर एक पंपलेट पे लिखा होगा कि यहाँ पे 9 to 12 क्लासेस चलते हैं, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड से। इसमें हर क्लासेस अच्छे अच्छे से चलते हैं, इतनी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाती है, अच्छे टीचर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर है। ये सब चीजें देख के बच्चे इंटरेस्ट होते हैं, परसेंटेज पिछले प्रीवियस ईयर के बच्चे इतने सक्सेस जो हैं उन सबको देख के लोग यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर और ब्राइट करते हैं। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यही इट इज दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव, जिसको देख के लोग आते हैं और एडमिशंस लेते हैं, यहाँ की फैसिलिटीज देखते हैं। दैट इज संकल्प ट्यूटोरियल का नाम भी बहुत बड़ा है, नाम बड़ा है तो काम भी यहाँ का बहुत बड़ा है। तो जब काम अच्छा होगा तभी लोग आएंगे। ये इनका एडवर्टीजमेंट प्रोसेस था, इसी को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। टुडे मैं इतने ही डिस्कस करूंगा, मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्लासेस में मैं उतने ही बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जितना एक लिमिट टाइम में समझ में आए। शेयर क्या होता है, शेयर के बारे में मैंने बताया, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैंने बताया, और इसको डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड डे।